آج ویو 360 میں پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی رفتار میں کمی، لیکن کیا گنجان آباد پنجاب سے زیادہ خطرہ اب بلوچستان میں ہے؟ امریکہ میں کرونا وائرس شہروں سے اب دیہی علاقوں کا رخ کرنے لگا، لاکھوں بے روزگار افراد پھر سے حکومتی امداد کے منتظر۔ اور عید کا گوشت اگر آپ کے فریج میں ہے تو آج دیکھیے ضلع خیبر پختونخوا کا مشہور پٹا تکا کیسے بنتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کرونا وائرس کی وبا کی نوعیت مسلسل بدل رہی ہے۔ کچھ ایسے ملک جہاں حالات بہتر ہوئے تھے پھر سے محدود لاک ڈاؤنز کی جانب جاتے نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے یعنی پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن عید پر اعلان شدہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ کووڈ-19 کی وبا پھوٹنے سے اب تک اگرچہ عالمی سطح پر 1,80,00,000 سے کچھ زیادہ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، لیکن 1,15,00,000 سے زیادہ صحت یاب بھی ہو چکے۔ اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 61,00,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر نئے کیسز کی مجموعی تعداد میں کوئی بڑی اور مستقل کمی اب تک نہیں لائی جا سکی ہے۔ امریکہ میں بعض ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وائرس کے خلاف حکمت عملی کو ازسر نو ترتیب دیا جائے۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں آئندہ 6 ہفتوں کے لیے رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ سنگاپور نے کچھ مخصوص ملکوں سے آنے والوں کو کوارنٹین یقینی بنانے کے لیے 11 اگست سے انہیں الیکٹرانک ڈیوائسز پہنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اب تک 20 لاکھ سے کچھ زیادہ افراد کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ مارچ میں کرونا وائرس کے کیسز کی نشاندہی کے بعد 14 جون کو پاکستان نے پیک ہٹ کی تھی، جب ایک ہی دن میں 6,825 کیسز سامنے آئے۔ اس کے بعد سے یومیہ رپورٹڈ کیسز کی تعداد کم ہوتے ہوئے اب چند 100 پر آ گئی ہے اور بیشتر کیسز نمٹائے بھی جا چکے ہیں۔ 2 جولائی کو ملک میں انفیکٹڈ افراد کی تعداد اپنی بلند ترین سطح پر تھی، جب 1,08,000 کے قریب افراد میں یہ وائرس موجود تھا۔ آج یہ تعداد بھی گھٹتے گھٹتے 25,000 کے قریب آ چکی۔ پاکستان میں اس بار بڑی عید بھی چھوٹی عید کی طرح پابندیوں کے ساتھ منائی گئی، اور ان پابندیوں کے نتائج کچھ ہفتوں بعد واضح بھی ہو جائیں گے۔ لیکن موجودہ اعداد و شمار جہاں خوشائند قرار دیے جا رہے ہیں، وہیں ان سے کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان کی جانب اور ضیاء سے جانتے ہیں کہ جو ڈیٹا اس وقت ظاہر کیا گیا ہے، پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے، کیا وجوہات پیش کی جا رہی ہیں اس کے لیے ضیاء؟ دیکھیے اسد، اگر ہم حکومتی اعداد و شمار دیکھیں تو اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پاکستان بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ جب میری اس سلسلے میں بات ہوئی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے اس قدر اپنی اچھی حکمت عملی بنائی ہے جس میں وہ کوارڈینیشن کو بہتر قرار دے رہے تھے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کرونا سیمپلنگ کی گئی تھی جس کو وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کہہ رہے تھے، کہ اس وجہ سے تمام جو وجوہات بنی جس کے بعد پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ لیکن جب میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر جاوید اکرم سے، تو انہوں نے حکومتی موقف سے اتفاق نہیں کیا بلکہ تنقید کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے پاکستان بھر میں کرونا کے مریضوں کے جو ٹیسٹ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہی گھٹا دی ہے، لہٰذا جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے تو مریضوں کی تعداد کیسے زیادہ ہوگی، وہ بھی روز بروز گھٹتی چلی جائے گی۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور یہ بھی بتائی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا رہن سہن مغربی ممالک سے بہت مختلف ہے، کیونکہ پاکستان میں اس قدر سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں مرد و خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، اور جو اگر مغربی ممالک میں کی بات کریں تو وہاں پر چونکہ سوشل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی وجہ بنی ہے کہ جو مغربی ممالک ہے وہاں پر جو کرونا کے کیسز ہے وہ زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں اور پاکستان میں کم رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اسی سلسلے میں جب حکومتی دعوے کو لے کے میں نے آغا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹر سے بات کی، ان کا بھی نام ڈاکٹر فیصل ہے، تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد کم ضرور ہوئی ہے، کسی حد تک ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کانٹیکٹ ٹریسنگ کو اس کی کامیابی کی وجہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس بات پر تنقید کی کیونکہ حکومت نے ٹیسٹ گھٹا دیے تو پاکستان بھر میں جو ریشو ہے مریض سامنے آنے کی وہ بھی گھٹ گئی ہے۔ ضیاء، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ پنجاب، اور اس میں اس وقت جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس فرق کی ریزنز کیا ہیں؟ کیا ابھی تک لاجک سامنے آ رہی ہے اس پہ؟
देखिए असद वैसे तो पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से मुतलिक जो हिकमत अमली है वो NCOC यानी कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल की ज़ेर सदारत जितने भी इजलास होते हैं उसमें बनाई जाती है, और इस NCOC की सदारत वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर असद उमर करते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने किसी हद तक सूबाई हुकूमतों को भी इख्तियार दिए हैं कि वो कोरोना वायरस से मुतलिक अपनी हिकमत अमली अपनाए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जो कि आबादी के लिहाज से भी बड़ा सूबा है, उन्होंने लॉकडाउन मुकर्रर वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि लोगों ने बहुत अच्छा अपना बर्ताव रखा ईद के मौके पर, लिहाजा वो लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान सूबे की, तो बलूचिस्तान सूबे ने जो अपना लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया, 17 अगस्त तक ले गए हैं। इस सिलसिले में जब हमारी हुकूमत से बात हुई और जो प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वो ये बता रहे थे कि अभी तो हुकूमत के मौक़िफ़ से यूँ भी इत्तफाक नहीं किया जा सकता कि गुज़िश्ता ईद उल फितर पर जब एकदम से कोरोना वायरस के मरीज़ जब पाकिस्तान भर में बढ़े थे तो अभी तो वो वक्त ही नहीं आया, यानी कि अभी तो ईद उल अज़हा गुजरे, महज अभी दूसरा दिन आज है या आज 2 दिन गुजरे हैं, लेकिन एकदम से हुकूमत ने कैसे ही फैसला कर लिया कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो ईद उल अज़हा का जो असर है वो तो 10 दिनों के बाद आएगा। जैसे ईद उल फितर के भी 10 दिनों के बाद पाकिस्तान भर में एकदम से केसेस बढ़े थे। तो एक तो ये उन्होंने तनकीद की हुकूमती जो मौक़िफ़ था उसके ऊपर। दूसरा उनका ये कहना था कि हुकूमत को इस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भर में जो है वो मरीज़ एकदम से बढ़े थे, तो क्या ही बेहतर होता कि ईद उल अज़हा पर भी थोड़ा सा हुकूमत धीमे मिजाज में चलती और एकदम से ख़त्म ना करती, ताकि जो पाकिस्तान भर में जो कोरोना मरीज़ों की तादाद है और ख़ास तौर पे जो तमाम सूबे जो एक पेज पे चल रहे थे, एक पिच पे चल रहे थे, वो सबके साथ अभी भी कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ जो है वो मुतफ़िक रहते और सब इकट्ठे रहते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान आपका। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $140 मिलियन के कोविड-19 रिलीफ पैकेज के लिए अब तक सिर्फ 25% फंड्स जमा हुए हैं। इदारे के मुताबिक KPK और बलूचिस्तान में कोविड-19 के सबब मुआशी तौर पर मुतासरा 1,20,000 अफराद के लिए खुराक की इमदाद का मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। इसके अलावा 35,000 मुहाजिरीन को माली इमदाद दी गई है और 30 लाख से ज़्यादा अफराद तक पानी और सेहत और सफाई की सहूलियात पहुँचाई गई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात के एतबार से अमेरिका सबसे आगे है। सदर ट्रंप का कहना है कि केसेस की तादाद अमेरिका में इसलिए ज़्यादा है कि अमेरिका टेस्ट भी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की सरबराह डॉक्टर डेबोरा ब्रिक्स ने खबरदार किया है कि वायरस अब शहरों से देही इलाकों में भी फैल रहा है। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में बेरोज़गारी की शरह 11% है। ऐसे अफराद की मदद के लिए ट्रंप इंतज़ामिया का पहला इमदादी पैकेज जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक्सपायर हो गया था। हालात तो बदले नहीं, लाखों लोग अब भी सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो सियासी इख्तिलाफात के बायस ताख़ीर का शिकार होती आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कोरोना वायरस वबा के दौरान बेरोज़गार अमरीकियों को हर हफ्ते $600 का मिलने वाला बेरोज़गारी अलाउंस ख़त्म हो गया, लेकिन डेमोक्रेट्स साल के आखिर तक इसमें तौसी पर इसरार कर रहे हैं। हम $600 के हक में रहे हैं। इनके पास $200 की तजवीज़ है जो काम करने वाले खानदानों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। रिपब्लिकन रहनुमाओं का कहना है कि हफ्तावार $600 देने से कुछ लोग बेरोजगार रहने को तरजीह देंगे। येल यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेडिट देने से लोगों में काम करने की हौसला शिकनी नहीं हुई। कुछ हालात में लोगों को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां लोगों को कम मुआवजा मिलता है। मसला ये है कि हमें इसमें तौसी के लिए एक मायदा करने की जरूरत है। रिपब्लिकन्स हील्स एक्ट के तहत तकरीबन $10 खरब की तजवीज दे रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इस साल के शुरू में मंजूर शुदा $30 खरब वाले हीरोज एक्ट को बातचीत के नुक्ता आगाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोनों फरीकों ने इत्तेफाक किया है कि वो अभी किसी मुआहदे के करीब नहीं पहुँचे हैं। हमें तवाज़न रखना होगा। यकीनन कारकुनों की मदद करने की जरूरत है, मईशत को सहारा देने की ज़रूरत है। इस खौफनाक बीमारी की वजह से लोगों को कारोबार बंद करना पड़ा, जो उनकी गलती नहीं है। दूसरी तरफ हमें मोहतात रहना होगा कि आइंदा नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा कर्जों का ढेर ना लग जाए। कानून साजों ने मुतनबी किया है कि जब माली इमदाद के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है तो मुल्क को कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस और हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद से निमटने की अशद ज़रूरत है। अपने मुज़ाकरात में हम इस वबा के कुछ नताइज से निमटने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस वायरस को शिकस्त देना होगी, और ये उन नुकात में से एक है जिस पर हम अभी तक किसी मुआहदे पर नहीं पहुँचे हैं। गुज़िश्ता एहतिताम हफ्ता मुल्क भर में बहुत से लोगों के लिए अगस्त का किराया अदा करने की आखिरी तारीख गुजर गई थी।
متعدد ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے اور امریکی اس انتظار میں ہے کہ واشنگٹن میں اس ہفتے کوئی بات آگے بڑھے۔ عیشا سرائی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس اور امریکہ کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے خبریں اور دنیا بھر کی اہم معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخابات کے لیے ایک اہم موضوع توانائی کے میدان میں ترقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماحولیاتی تحفظ بھی بہت سے ووٹرز کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا فوکس ہے کہ توانائی کے شعبے میں امریکہ کی بالادستی ہو، جبکہ ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن ماحول دوست توانائی کا منصوبہ پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کے نقطہ نظر میں یہ فرق انرجی اور انوائرمنٹ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں صدر ٹرمپ نے اپنے دورے کے دوران اپنی انتخابی مہم کے اس پیغام پر زور دیا جس سے ان کے مطابق دنیا میں امریکی توانائی کی بالادستی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ٹیکسس سے نکلنے والے خام تیل کی برآمد اور قدرتی گیس کے معاملے پر کچھ پرمٹس پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ کا یہ منصوبہ ان کے سیاسی حریف اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن سے مختلف ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن ٹیکسس میں کچھ بہتر کر پائیں گے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں اور اسے رد کر چکے ہیں اور ان کے پلیٹ فارم کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کبھی یہ انتہائی بائیں بازو کے سیاستدان با اختیار ہوئے تو نہ صرف ملک کی صنعت بلکہ اس کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ان کے بیان کردہ ایجنڈا میں پیرس کے ماحولیاتی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو کر اربوں ڈالر صرف کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں۔ ٹیکسس میں ووٹرز کا رجحان 1980 کی دہائی سے زیادہ ریپبلکنز کی طرف ہی رہا ہے، تاہم کچھ حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ بائیڈن کی پوزیشن ٹرمپ سے بہتر ہے اور اس کی ایک وجہ صدر کی جانب سے کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کا طریقہ کار ہے۔ ریاست ٹیکسس کا دار و مدار زیادہ تر تیل اور گیس پر ہے اور اس صنعت کو وبا کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن اسٹریٹجسٹ برینڈن اسٹائن ہاؤزر کا خیال ہے کہ یہ معاملہ صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریاست میں صنعت اور تیل و گیس سے وابستہ زیادہ تر لوگ اور ملازمین بھی ریپبلکنز ہیں، اور صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی کی حمایت کے لیے جو بھی پیسہ صرف ہو رہا ہے وہ توانائی کی اسی صنعت سے آ رہا ہے۔ جولائی کے وسط میں جو بائیڈن نے 4 سال پر محیط $2 کھرب کی سرمایہ کاری کا ایک منصوبہ لانچ کیا تاکہ ملک میں ٹرانسپورٹیشن، بجلی اور کنسٹرکشن کے شعبوں میں صاف توانائی کے استعمال کو بڑھایا جا سکے۔ ان کا یہ منصوبہ ایسے پروپوزلز کا ایک تسلسل ہے جس سے ملک میں کووڈ-19 کی وبا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث تباہ ہونے والی معیشت کو بحال کیا جا سکے گا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک ہی لفظ سوچتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور جب میں اس بارے میں سوچوں تو میرے ذہن میں ملازمتیں آتی ہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم جو بائیڈن کے ماحولیات کے ایجنڈے کو توانائی کی صنعت کے لیے نقصان دہ بتا کر پیش کر رہی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس قسم کے حملے کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت سی وہ ریاستیں جو انتخابات میں میدان جنگ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہاں پر صاف توانائی کی صنعت میں ملازمتوں کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اس لیے جو بائیڈن کی طرف سے اپنے معاشی منصوبے میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور صاف تیل اور توانائی کو مرکز بنانا ان کی عقل مندی ہے۔
economic plan was a very smart frame. ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि उसने तवानाई के मामले पर सरकारी जमीनों पर कोयला किराए पर देने के मुआहदे को खत्म करके और ओबामा दौर में बनाए जाने वाले माहौलियाती उसूलों को रद्द करने के साथ साथ तवानाई के हुसूल के लिए अवामी जमीनों जिसमें अलास्का का भी कुछ ऐसा हिस्सा शामिल है जहां जंगली हयात पनपती है उस पर तलाश की इजाजत देकर अपने हिस्से का काम किया है। लेकिन माहौलियात पर नजर रखने वालों ने इन इक़दामात की सख्ती से मुखालफत की है। अमरीका में तवानाई और माहौलियात पर पैदा होने वाले इन मामलात का फैसला इस साल नवंबर के इलेक्शंस में होगा। पैट्सी विडाकुस्वारा के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबार को मुतासिर किया है, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय कुछ छोटे कारोबार करने वालों ने इस नई हकीकत को कबूल किया और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपने पांव जमाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढे। इन्होंने क्या नए तरीके ढूंढे और बदलते हालात के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं। रियासत शिमाली डकोटा में एक कार डीलरशिप के मालिक कहते हैं कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला अपने मुलाजमीन में कमी करके भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय इसका एक मुख्तलिफ हल ढूंढा। When the pandemic first hit, वबा के फौरन बाद हमने 7 लोगों की एक टीम बनाई, 6 डीलरशिप में, जबकि रोंडा हमारी ऑनलाइन मदद करती हैं। रोंडा लाज वर्चुअली काम करती हैं। वो सारा दिन जरूरत के मुताबिक ग्राहकों और डीलरशिप के तमाम मतलूबा काम ऑनलाइन अंजाम देती हैं। COVID-19 situation is something that we started. हम इस वबा के दौरान जो कुछ कर रहे हैं इसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। बहुत से काम आप घर बैठे कर सकते हैं, जैसा कि पॉलिसीज बनाना, ये देखना कि सफाई के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं और ये कि कौन से आलात कहाँ से लिए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। रेनाल्ड कहते हैं कि रोंडा के पास इतना काम है कि शायद उन्हें अपने लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की भी जरूरत पड़े। मैंने इस सूरत हाल में कई लोगों की नौकरियां खत्म होती देखी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें हर शोबे में और ख़ास तौर पर कारोबार के तरीके बदलने की ज़रूरत है। कारों की खरीदो फरोख्त का कारोबार रेनाल्ड के दादा ने तकरीबन 100 साल कबल शुरू किया था। वो कहते हैं कि वबा के बावजूद उनका कारोबार मुस्तहकम है क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द मुतबादिल तरीके इख्तियार कर लिए थे। मरियामा दयालो के साथ सादिया जेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है और दारुल हुकूमत दिल्ली का शुमार मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासरा शहरों में होता है। लेकिन अब 4 माह बाद शहर में रेस्टोरेंट्स एक बार फिर खुलने लगे हैं। घरों में फंसे शहरी खुश हैं कि पाबंदियों के साथ ही सही ज़िंदगी की कुछ रौनक तो बहाल हुई और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुई थी, बेहतरी के लिए कुछ पुरुमीद है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट से। जिस्मानी दर्जा हरारत की चेकिंग, ऐप्स पर दिए जाने वाले मेन्यूज और ऑर्डर्स और चेहरे पर मास्क पहने वेटर्स। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बाहर खाना खाने का तजर्बा अब पहले से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे ही रेस्टोरेंट्स दोबारा खुल रहे हैं, ग्राहक मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के एहसास के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि शहर में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं और लोग महीनों से घर के अंदर बंद हैं। कुछ तो खुशी का मौका मनाने आए हैं और कुछ अपने खानदान के साथ। मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह लॉकडाउन में 4 महीनों तक जिंदा रही, इसलिए मैं अभी बेताबी से अपने खाने का इंतजार कर रही हूँ। ये जायका कहीं खत्म हो गया था, लिहाजा आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस जायके को दोबारा महसूस कर सकूँ। The feeling of going out. रेस्टोरेंट्स के मालिकान पर उम्मीद हैं कि फिलहाल जो सारे काम स्क्रीन्स पर हो रहे हैं, बिल आखिर वो मामूल पर वापस आ जाएंगे।
रेस्टोरेंट्स इंटरनेट से हटकर इंसानी ताल्लुकात के लिए उम्मीद की आखिरी मंजिल हैं। इस दुनिया में हर चीज़ वर्चुअल हो सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स और शराब खाने कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकते। लोग हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लोग खुशी मनाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स सार्फिन को राग़िब करने के लिए बराह रास्त राबते के बगैर खाना मुहैया करने, समाजी फासले के लिए मेज़ खाली रखने और साफ सुथरे किचन को यकीनी बनाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन अब भी इस सनत की बहाली एक तवील सफ़र है जो 17 लाख अफराद की मुलाजमत का जरिया था। ये रेस्टोरेंट प्राण शुकीरा के उन 2 रेस्टोरेंट्स में से है जिन्हें खोला गया है। वो कुल 25 रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। आउट ऑफ द 1200 पीपल मेरे पास 1200 अफराद काम करते थे। हर रेस्टोरेंट में एक वक्त में तकरीबन 70 से 80 लोग काम करते थे, मगर अब ये रेस्टोरेंट 14 अफराद की मदद से चल रहा है और दूसरे में 12 अफराद काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं फ़िलहाल 18 मुलाजमीन के साथ काम कर रहा हूँ। एक ऐसे शहर में जहां तफरी के लिए सबसे ज्यादा पैसे बाहर खाना खाने पर खर्च किए जाते हैं, लोग वहां अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमें किसी भी तरह इससे निपटना है। हम घर बैठे मईशत को कमजोर होने नहीं दे सकते। अगर हम कुछ खोलना नहीं चाहते हैं तो ये हमारे लिए काफी खौफनाक है। लिहाजा आज मैं बहुत खुश हूँ। हो सकता है कि कुछ दिन बाद हम शायद दोबारा बाहर निकलें, क्योंकि खानदान के साथ लॉकडाउन के बाद ये हमारा पहला तजर्बा है। इससे इस सनत को उम्मीद बंधी है, जबकि वबाई मर्ज अब भी तशवीश का बायस है। लोग वायरस को अपनी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर तस्लीम करते हुए जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे ख्याल में हिंदुस्तानी सख्त जान है। हिंदुस्तानी हालात का मुकाबला करते हैं, वो अपने ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। ये शहर जो अपने पांव पर वापस आने के लिए लड़ रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा है। अंजना पस्ट्रीशा के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलते हैं पाकिस्तान। ईद उल अज़हा के मौके पर इस मरतबा सरगर्मियाँ कदरे महदूद रहीं, लेकिन बहुत से घरों में लजीज पकवान अब भी बन रहे हैं। तो एक रेसिपी हम आपको दिखाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का मज़ेदार और मुनफरिद पट्टा टिक्का। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला खैबर में दाखिल होते ही गोश्त के मुख्तलिफ पकवानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू आपका इस्तकबाल करती है। खैबर के रिवायती पकवानों में पट्टा टिक्का सर फहरिस्त है। पट्टा टिक्का यहाँ का एक रिवायती खाना है। ये लंडी कोतल ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। यहाँ पट्टा टिक्का खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसे पसंद किया जाता है। ये कबायली इजला की नहीं, पूरे पाकिस्तान की पसंदीदा डिश है। चर्बी में लपेट कर बनाने की वजह से इसे पट्टा यानी लिपटा हुआ टिक्का कहते हैं। इसे छोटा काट लेते हैं और उन्हें सीख में नीम पुख्ता पका लेते हैं। इसके बाद इसे ले जाकर इसके ऊपर दुम्बे और बकरे के पेट की चर्बी में इसे लपेट लेते हैं और सीखों पर लगाकर इसे कोयले पर पकाते हैं। इसके ऊपर सिर्फ नमक डालते हैं। हम अक्सर आते हैं चारसदा से यहाँ पट्टा टिक्का खाने के लिए। वैसे तो ये हर सिटी में मिलता है, पेशावर के नमक मंडी में भी मिलता है, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है। मेरे साथ दोस्त हैं, दुबई से आए हैं, उनको भी मैं यहाँ लेकर आया हूँ, सो उनको खिलाने थे, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पट्टा टिक्का अब पाकिस्तान के कई और शहरों में भी मिलता है, लेकिन ज़िला खैबर जैसा जायका कहीं और नहीं मिलता। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, जमरोद, ज़िला खैबर। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।